everyone. Today we are going to study about deadlock avoidance. In our previous class we see deadlock prevention. हम लोग कौन कौन सा measures लेंगे that so that जो necessary conditions है to occur deadlock वो चारों इनमें से क्या क्या prevention लेंगे या फिर कौन कौन सा मेजर्स लेंगे सो दैट कि इन जो चारों कंडीशन में से कोई एक या कोई दो भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इट डजंट लीड्स टू डेडलॉक. ओके, सो उसका और एक ये है कि डेडलॉक अवॉइडेंस. तो हम लोग कैसे डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं. सो in deadlock avoidance, the approach is that resources should be allocated in such a manner that system will not face deadlock condition. So various algorithms are defined so as to avoid circular gate and other possibilities that causes deadlock. And the two most common deadlock avoidance algorithms है तुम लोग का resource allocation graph algorithm and bankers algorithm. So before discussing these two algorithms, we have to know about safe and unsafe state need to be understood. Okay, so here is the content we will discuss. So in general, what do you mean by state and what is safe state, what is unsafe state, हम लोग बोलते हैं in general. So the state of the system informs that if the resources are allocated to different processes, then the system undergoes deadlock or not. Okay, and safe state बोल रहा है that if the system can allocate resources to the process in such a way that it can avoid deadlock, then the system is in safe state. So what is an unsafe state? If the system cannot allocate resources to the process in such a way that it can avoid deadlock, then the system is in an unsafe state, which means that suppose, let me give you an example, that suppose there are number of ways. ऐसे नहीं कि तुम लोग अगर कॉलेज आ रहे हो तो एक ही रास्ता में आ रहे हो. देयर आर डिफरेंट वेज तुम लोग को कॉलेज आने का. सपोज तुम आज कहीं बाहर जा रहे हो तो तीन टू रास्ता है. तो एक रास्ता है जो बहुत सेफ है, ऑलवेज वहाँ पे मीन्स अच्छा से, मतलब रास्ता भी अच्छा है एंड कोई इंसिडेंस नहीं होता है वहाँ पे. एंड क्या मे बी शॉर्टकट हो सकता है, मे बी शॉर्टकट नहीं हो सकता है वह रास्ता, बट फॉर ट्रैवलिंग दैट वे इज सेफ अगर मान लो. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना, इट इज दैट इज द सेफ स्टेट फॉर यू और दैट इज द सेफ वे फॉर यू टू गो टू योर डेस्टिनेशन. ओके, अगर और दो रास्ते अनसेफ, मैं किस टाइम में बोलूँ कि अगर उसमें हमेशा कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होता है, रास्ता भी ठीक नहीं है अगर, और थोड़ा जंगल है, तो मैं वो हम लोग बोलते हैं ना, मतलब अच्छा से देख के जाना, मे बी कुछ इंसिडेंट हो सकता है वहाँ पे, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता रहता है. ओके, तो हम लोग बोलते हैं दैट इज द नॉट द सेफ वे टू गो टू योर डेस्टिनेशन. ओके, सो हियर ऑल्सो इन डेडलॉक अवॉइडेंस, यहाँ पे हम लोग सेफ एंड अनसेफ स्टेट पढ़ रहे हैं. तो if the system cannot allocate the resources to the process in such a way that it can avoid deadlock, then the system is an unsafe state. So एक और चीज याद रखो, दे जरूरी नहीं कि जो रास्ता आपको अनसेफ हमें है बोलते हैं, जरूरी नहीं कि वो रास्ता में हमेशा कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो हर टाइम के हर ये. ओके, तो मतलब कभी कभी हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक का बात करूँ, ऑलवेज डेडलॉक ऑकर्स. सो हम लोग देखेंगे कैसे. सो इन जनरल, when a process requests an available resource, system must decide if immediate allocation leaves the system in a safe state. So system is in safe state if there exists a safe sequence of all the processes. So when a process requests an available resource, system must decide if immediate allocation leaves the system in a safe state. So हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कैसे डिफाइन करते हैं ना, स्टेट इज सेफ if the system can allocate all the resources requested by all the processes up to their stated maximums, जितना दिया हुआ है maximum state, तो without entering into a deadlock state. So more formally हम लोग define करेंगे the state, a state is safe if there exists a safe sequence of processes, that is P0, P1, P2, P3 up to Pn, such that all of the resource request for Pi can be granted using the resources currently allocated to Pi.
ओके वो रिसोर्स जो है उसको वो पी को एलोकेट है एंड ऑल द प्रोसेसेस पीजे नेक्स्ट और जो प्रोसेस है पीजे पर जे का वैल्यू इज लेस देन आई and that is if all the processes prior to pi finish and free up their resources then pi will be able to finish also and using the resources that they have freed up okay so यहाँ पे क्या बोल रहा है if all the processes prior to pi finish and free up their resources then pj will also able to finish its task okay so if a safe sequence doesn't exist then the system is in an unsafe state which may lead to deadlock so all safe states are deadlock free but not all unsafe states lead to deadlock जो मैं बोल रही थी this here unsafe state may leads to deadlock but not always the case मतलब ये हमेशा नहीं हो सकता so deadlock avoidance ensures that a system will never enter an unsafe state so deadlock avoidance क्या करता है ना system वो unsafe state के अंदर घुसे ही नहीं तो ही ना वो डेडलॉक को अवॉइड कर सकता है अगर वो अनसेफ स्टेट में घुस गया तो मे हो सकता है कि डेडलॉक हो जाए मे नॉट deadlock occur okay so here that you why unsafe state deadlock so you have list of processes and list of resources are there and each process you have so the number of each resources they will ever need at once and the number of each resources they are currently allocate to that process okay so यहाँ पे देखिए so how can a system be in an unsafe state but have an allocation sequence that allows all the process to finishing executing so remember one thing that remember the assumption that the banker's algorithm makes okay we will see banker's algorithm later that it assumes all the processes will request all the resources they would ever need at once and then terminate releasing all of the resources so that they just requested and the ones they had so the assumption that can be incorrect is that processes request all the resources they will ever need जो उसको चाहिए and there might not be an allocation sequence that allows all the processes to finish executing if they do request all the resources they will ever need but if the process actually do not request all the resources then वहाँ पे क्या हो सकता है ना they will ever need means maybe one less example so then it might be enough for the system to avoid getting caught in a deadlock so there is an example for you suppose free resources 3 है p1 p2 p3 process है and allocated रिसोर्स p1 को 4 p2 को 2 एंड p3 को 2 है तो नीडेड रिसोर्स उसको 10 है p1 को p2 को 4 एंड p3 को 7 है ओके सो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ ना देखो मैं 3 फ्री रिसोर्स थे ओके तो मैं अगर यहाँ पे p1 को दे दूँ तो एलोकेटेड रिसोर्स कितना है 4 4 प्लस 3 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 सो बट नीड इसको कितना है 10 है तो हम लोग क्या करेंगे ना P1 को उसको नहीं दे सकते हम लोग उसको नहीं दे सकते नेक्स्ट कम टू P2 सो P2 को कितना रिसोर्स एलोकेट हुआ है 2 रिसोर्स हम लोग के पास फ्री रिसोर्स 3 है सो 2 प्लस 3 होने से 5 हो जा रहा है बट नीडेड रिसोर्स उसको कितना चाहिए 4 तो हम लोग क्या करेंगे ना 3 जो रिसोर्स फ्री है उसमें से 2 रिसोर्स दे देंगे सो एलोकेटेड रिसोर्स 2 है P2 को 2 प्लस 2 4 हो गया ओके नाउ 4 हो गया तो यहाँ पे नेक्स्ट में देखो फ्री रिसोर्स अभी 1 है क्यों 1 है हम लोग जो फ्री रिसोर्स तो 3 था पहले हम लोग जो फ्री रिसोर्स जो 3 था उसको हम लोग वहां में से 2 रिसोर्स P2 को दे दिए तो नाउ P2 एग्जीक्यूट टर्मिनेट्स वो अपना रिसोर्स उसको मिल गया वो टर्मिनेट हो गया ओके नाउ हम लोग उसमें से 2 दिए तो अभी कितना बचा है फ्री रिसोर्स 1 बचा है ओके नाउ कम टू दिस सो अभी P2 टर्मिनेट हो गया तो उसको कितना रिसोर्स नीड था 4 रिसोर्स नीडेड ओके नीडेड 4 रिसोर्स तो
तो फुलफिल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अभी वो जो 4 रिसोर्स उसको चाहिए तो वो तो फुलफिल हो गया, अभी उसको लीव कर देगा। हम लोग सम सीक्वेंस फॉलो करने के लिए बोले थे ना, रिक्वेस्ट, यूज एंड रिलीज इट। सो अभी वो रिसोर्स को वो रिलीज कर दिया। ओके, नाउ जब वो रिलीज कर दिया तो अभी कितना हुआ, फ्री रिसोर्स हम लोग के पास एक बचा था, 1 + 4। 1 + 4 कितना हुआ, 5। तो फ्री रिसोर्स यहाँ पे 5 हो गया। देन प्रोसेस P1, P2, P3 एलोकेटेड रिसोर्सेस। P1 वैसे ही है, P2 0 बिकॉज इट टर्मिनेट्स। देन P3 P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। P3 allocated resource 2 है and needed resource 7 है। now free resource 5 है। now again come back to P1। P1 को 10 चाहिए, हमारे पास 5 है। स्टिल यहाँ पे अगर मैं 5 दे दूँ तो 9 होगा और 1 नहीं हो पाएगा, तो स्टिल हम लोग P1 को नहीं देंगे। P3 को, कम टू P3। P2 को अलोकेट है 2, हम लोग वो अगर फ्री रिसोर्स 5 दे देंगे वहाँ पे तो 2 + 5 कितना हो गया, 7। सो नाउ P3 को जो चाहिए था दैट इज फुलफिल हो गया, 7 7। देखो यहाँ पे फ्री रिसोर्सेस उसको पूरा टोटल दे दिए, तो अभी फ्री रिसोर्स हम लोग के पास कितना है, 0 है, क्योंकि हम लोग 5 में से 5 ही दे दिए P3 को, तो 7। सो नाउ P3 ऑल्सो एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि उसको रिसोर्स मिल गया। नाउ P3 रिलीज इट्स रिसोर्सेस, जो 7 रिसोर्स था तो वो उसको रिलीज कर दिया। सो P3 अभी फ्री रिसोर्सेस कितना हो गया, 7। 0 रिसोर्स था, P3 रिलीज किया तो 7 रिसोर्स हो गया, 0 + 7 7 = 7। सो नाउ P2 हो गया, P3 हो गया। नाउ कम टू P1। P1 के पास हम लोग जाएंगे, तो P1 के पास हम लोग जाएंगे तो हम लोग के पास अभी 7 था ना, तो हम लोग 7 में से अगर मैं यहाँ पे 7 दे दूँ कि 4 प्लस, देखो 4 + 7 दे दूँ तो 11 हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी ना, वहाँ से 6 को दूंगी। सो 4 + 6 = 10 मीन्स एलोकेटेड। नेक्स्ट में देखो फ्री रिसोर्स 1, उसके नीचे में देखो तो यहाँ पे 10 प्लस 4 + 6 = 10 होगा, आई नीडेड रिसोर्स 10। सो दैट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ से मैंने 6 दे दी, तो यहाँ पे फ्री रिसोर्स हम लोग का कितना बचा, 1। नाउ फ्री रिसोर्स कितना हुआ, P1, P2, P3 तीनों एग्जीक्यूट हो गए। फ्री रिसोर्स अभी कितना हुआ, फ्री रिसोर्स हम लोग के पास 1 था, फ्री रिसोर्स अभी कितना हुआ, 1 प्लस वो 10 रिलीज हो गया ना, P1 रिलीज कर दिया अपना रिसोर्स को, सो 1 + 10 दैट इज इक्वल टू 11। So all the processes execute successfully, so there is no deadlock and the system is in safe state। कोई डेडलॉक हुआ क्या, हम लोग एक के बाद एक देख के जा रहे हैं, हम लोग सब सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। सो हियर इन दिस केस डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। ओके, थैंक यू, टुडे दिस मच।